My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing logical reasoning questions that have appeared in CMAT examination in the first shift. Start करते हैं session को. And if you're not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to the channel और साथ में also like this video if you're liking the content. You can also join Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of this session. The question is on assertion and reason. Assertion is saying cotton is grown in alluvial soils, and reason alluvial soils are very fertile. We need to identify whether both are true, and if both are true, so can we say that reason is R is correct explanation of A or not? तो assertion कह रहा है cotton is grown in alluvial soils. Is this correct? This is not correct. ठीक है, एज सच ये क्वेश्चन जीके का ज्यादा है. तो कॉटन इज नॉट प्रेफरेबली ग्रोन इन एल्यूवियल सॉइल्स. ग्रो किया जा सकता है, बट इन जनरल कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल. ठीक है, एल्यूवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, तो दैट रीजन इज करेक्ट. that is true that alluvial soils are fertile in nature because of the nutrients in them, because they are nutrient rich, and alluvial soils are found in Indo-Gangetic plains deposited by rivers. ठीक है, alluvium is the sediment को कहते हैं alluvium. तो alluvial soils are rich in nutrients, that is why they are very fertile. That is true. So reasoning is correct, but assertion is not correct. Assertion is false because cotton is mostly grown in black soil. Alluvial soils में क्या ग्रो करते हैं? Wheat हो गया, rice हो गया, and so on. Okay. So answer will be assertion is false and reason is true. Option D will be the answer. Next question. Matching list 1 with list 2. List 1 is saying classes and list 2 is saying diagrams. First, potato, meat and vegetable. So potato is a vegetable. There should be a larger set of vegetable inside that potato will be, or meat तो separate होगा, यानी कि A can be matched with this, because यहाँ पे this could be potato, this is vegetable and this could be meat. Option B, लॉ स्टूडेंट, मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड मैन. अच्छा, पहले देख लेते हैं कि A2 के साथ में कितने ऑप्शन आ रहे हैं. तो A और B तो पहले रिजेक्ट हो गए. ठीक है, B4 के साथ ही मैच हो रहा है, तो वैसे भी हमें पता है, बट अदरवाइज लॉ स्टूडेंट, मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड मैन. तो सम लॉ स्टूडेंट्स विल बी मैन, सम विल बी फीमेल्स. ठीक है, सो इफ दिस इज लॉ स्टूडेंट, these are men and these are management student. Okay, wheat, grains and maize. Now wheat and maize both are grains, so both must be inside the set of grains. तो C must be matched with one only. तो C1 यानी कि ऑप्शन C हमारा आंसर हो गया. D को देखेंगे तो ऑयल, फ्रूट एंड शुगर ऑल आर सेपरेट, तो D will be matched with this. Okay. Next question. Statement is given followed by two arguments. We need to identify which arguments are strong in the given case. Statement हमारा कह रहा है, should India make efforts to harness solar energy to fulfill its energy requirement? Should India make efforts or not? Argument 1 is saying yes, it should. Most of the energy sources used at present are exhaustible. And argument 2, no, harnessing solar energy requires a lot of capital which India lacks in. The first argument is saying yes, most of the energy sources used at present are exhaustible. They are non-renewable. They are exhaustible. They will deplete soon. So India should make efforts to harness solar energy to fulfill its energy requirement. The first argument is a strong argument because it is not just saying yes, but it is also giving a logical reasoning behind that India should be using solar energy, should be making efforts because most of the energy resources used as present are exhaustible. The first is a strong argument. Second one, no, harnessing solar energy requires a lot of capital which India lacks in. Now solar energy is important to harness to fulfill the energy requirement. Okay, so even if it requires a lot of capital, should India not harness it? That is the question. ठीक है, कि even if India lacks the capital as of now, because ये logically भी incorrect है और factually भी incorrect है कि but even if India, it does require a lot of capital, India is lacking it at present, still India should make efforts to harness the solar energy, social क्यों बार बार हो रहा है, solar energy requirements to ensure that. So definitely second argument is a weak argument, logically as well as factually. तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दैट ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड इज अ वीक आर्गुमेंट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
A clock is set right at 8 a.m. The clock gains 8 minutes in a day. What will be the true time when the watch indicates 11 a.m. the next day? यानी कि वॉच का टाइम बता रहा है और हमें एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, ट्रू टाइम क्या होगा. तो वॉच इज सेट राइट एट 8 a.m. क्लॉक गेन्स 8 मिनट्स इन अ डे, यानी कि इन 24 आवर्स क्लॉक गेन्स 8 मिनट्स. ओके, सो 24 आवर्स के बाद में क्या होगा? इफ वी डिस्कस अबाउट ट्रू टाइम एंड क्लॉक टाइम, 8 a.m. पे द क्लॉक इज सेट राइट, यानी कि एट 8 a.m. टुडे clock time as well as true time is same, but just after 24 hours true time will be 8 a.m. on the next day, but clock time क्या होगा? Clock will gain 8 more minutes, तो 24 hours plus 8 minutes, यानी कि it will be showing time 8 a.m. isn't it? So effectively 24 hours में if clock is gaining 8 minutes divided by 8, so effectively 3 hours में clock will be gaining 1 minute, क्योंकि ऑप्शंस हमारे इतने क्लोज हैं, ऑप्शंस में इतना डिस्टेंस है 50 मिनट्स, 49 मिनट्स, 48 मिनट्स एंड 51 मिनट्स, क्योंकि 1 मिनट का गैप आ रहा है हमारा इन 3 आवर्स. और 11 a.m. में फ्रॉम 8 a.m. to 11 a.m. देयर इज अ गैप ऑफ 3 आवर्स, isn't it? So if we check कि आफ्टर 3 आवर्स टाइम ट्रू टाइम विल बी 11 a.m. एंड क्लॉक टाइम क्या हो जाएगा? दैट विल बी 3 आवर्स प्लस 1 मिनट, तो प्लस 3 आवर 1 मिनट, क्लॉक टाइम विल बी 11:09 a.m. और क्वेश्चन पूछ रहा है जब क्लॉक टाइम 11 a.m. होगा तब टाइम क्या होगा? ठीक है, तो रफली हमारा वैल्यू क्या आ रहा है कि इन 3 आवर्स क्लॉक इज गेनिंग 1 मिनट, यानी कि 180 मिनट्स. when true time is 180 minutes, the clock time is 181 minutes, isn't it? So तो अगर हम 9 मिनट शिफ्ट करते हैं, 9 मिनट्स डिक्रीज करें क्लॉक में, तो रफली कितना डिक्रीज आएगा? ट्रू टाइम में ऑलमोस्ट उतना ही डिक्रीज आएगा, क्योंकि सारे गैप हमारे 1 मिनट के हैं. तो वी कैन से दैट 11 - 9 रफली 10:51 शुड बी द आंसर. ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अदरवाइज वी कैन से दैट व्हेन ट्रू टाइम इज 180 मिनट्स, द क्लॉक टाइम इज 181 मिनट्स. ओके, यानी कि क्लॉक इज गेनिंग बेसिकली 1 मिनट फॉर एवरी 180 मिनट्स, isn't it? So तो क्लॉक टाइम इज बेसिकली +1/180 फॉर द ट्रू टाइम. और अगर हमें क्लॉक टाइम गिवन है तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? उस केस में वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग 1 मिनट 1/181. तो अगर हमें 9 मिनट यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पे क्या सब्ट्रैक्ट होगा? दिस विल बी 9 × 180/181, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा 9 के आसपास ही आएगा. दैट इज वाई आई सेड कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा. अदरवाइज एक्यूरेट टाइम क्या होता है? 11 - 9 × 180/181, इतना सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता, which will be approximately 9 only. That is why option D will be our answer. Okay, clear? Next question. 7 persons A, B, C, D, E, F and G are sitting in a straight line, not necessarily in the same order, facing north. So if all of them are facing north, so their left will be this and right will be this. Only 2 persons sit between F and G sits second to the left of B. अगर हमें एक एंड पॉइंट मिल जाए तो वहां से चीजें आसान हो जाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन ट्राइंग to find an end point. If directly a statement is given, that will be best. So 7 persons in total, and given क्या है? B sits at the extreme right end of the row. Good. So B is sitting at extreme right end of the row. E sits exactly between G and B. Okay. तो G and B के बीच में E is sitting. और क्या इंफॉर्मेशन है? Only 2 persons sit between F and G. G sits second to the left of B. Second to the left of B, यानी कि this should be position of G. And E is sitting exactly between G and B. So E must be sitting here. Then only 2 persons sit between F and G. So G and F के बीच में there are 2 persons, so F must be sitting here. Fine. And G sits second to the left of B. D sits third to the left of C. Third to the left of C. Okay. तो C कहाँ पे हो सकता है? C के लिए एक ही प्लेस बचा है. C must be here. Because तभी तो third to the left of C में D हो पाएगा इस प्लेस पे. Because if C is sitting here, तब पॉसिबल ही नहीं है D का बैठना. D कहाँ बैठेगा बेचारा जाके? तो C must be here. D must be here and then A must be here. This is the only possible case. D, F, A, C, G, E and B. Now statements check करते हैं. Statement A, F sits at the extreme left of the line. Not correct. D is sitting at the extreme left. 2 persons sit between E and F. That is also false because there are 3 persons sitting between E and F. This is also false. तो A भी false है, B भी false है. तो ऑप्शन A आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन B आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन D आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन C must be the answer.
अच्छा, सी क्या कह रहा था, अब चेक बस कैसे फॉर्मेलिटी के लिए चेक कर रहे थे. सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन, दैट इज करेक्ट, एग्जैक्टली इन द मिडल, दैट इज करेक्ट. एंड ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो बोथ सी एंड डी आर करेक्ट. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A person walked 40 meters towards north, took a left turn and walked 20 meters. He again took a left turn and walked 40 meters. How far and in which direction is he from the starting point? So if this is the starting point, from starting point, he started walking towards north. This is north, this is south, this is east, and this is west. So 40 meters towards north, then took a left turn and walked 20 meters. So 20 in the left direction. Then he again took a left turn and walked 40 meters. Okay. How far and in which direction is he from the starting point? So he is basically 20 meters far from the starting point and in the west direction. तो 20 मीटर्स वेस्ट, ऑप्शन डी विल बी द आंसर. अब ये तो यहाँ पे हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टेप्स थे तो क्वेश्चन इजी था. बट कई बार ऐसा होगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा होंगे और वहाँ पे फिर हम क्योंकि मैनुअली बना रहे हैं तो हमें नहीं पता 20 कितना है 40 कितना है, समहाउ कहीं पे मिस्टेक होने का स्कोप भी हो सकता है कि 40 30 20 50 ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. ऐसे केस में क्या करोगे, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो अप्लाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को अप्लाई करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जबकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो कि तुमने जहां से स्टार्ट किया, लेट अस से दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज 0,0. देन यू मूव्ड 40 मीटर्स टुवर्ड द नॉर्थ, तो दैट विल बी, नया पॉइंट क्या होगा, दिस विल बी 0,40. देन 20 इन द लेफ्ट साइड, so that will be minus 20, 40. Then 40 towards the left, this will be minus 20, 0. ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं थी, बट जहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हो वहाँ पे ये काम करके तुम अपने लिए चीज़ें आसान कर सकते हो. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, कोर्ट एंड जजमेंट. पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा यही आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा क्राइम. ठीक है, पुलिस तो हमेशा क्राइम के बाद ही आएगी ना, तो पहले होगा क्राइम. फर्स्ट देयर विल बी क्राइम, देन देयर विल बी पुलिस, यानी कि सी देन ए. वंस द पुलिस इज देयर, इन्वेस्टिगेशन होगा. इन्वेस्टिगेशन के बाद में कोर्ट जाएगा मामला, तो सी देन ए देन डी, देन कोर्ट देगा जजमेंट ई, और फाइनली होगा पनिशमेंट विच इज बी. ओके, ये बात अलग है कि कभी कभी जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो अपने आप में ही पनिशमेंट हो जाता है, बट सी ए डी ई बी, दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Atal Academy focuses on the performing arts. In the current batch, 40 students can sing, 60 students can dance, and 24 students can act. No student is a triple treat, यानी कि someone who can sing, dance and act, यानी कि तीनों काम कोई भी एक स्टूडेंट करे ऐसा नहीं है कोई. However, 16 students can sing as well as dance, 12 can dance and act, and 8 can sing and act. How many students have only one performing talent? So there are 3 talents. Venn diagram draw करते हैं. Talents are singing, dancing and acting. Sing, dance and act. 40 can sing, 60 can dance, and 24 can act. Now no student can do all three. तो all three वाले तो स्टूडेंट जीरो हो जाएंगे, दिस विल बी जीरो. और ये मामला जीरो हो गया तो आसान हो गई चीजें हमारे लिए, बिकॉज 16 कैन सिंग एज वेल एज डांस, दिस पार्ट विल बी 16. अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि दिस पार्ट वुड हैव बीन 16, है कि नहीं. ये पूरा 16 होता है हमारा, इसमें कि ऑल थ्री भी इंक्लूडेड होते हैं, बट ऑल थ्री क्योंकि जीरो है तो हमें पता है स्ट्रेट अवे कि 16 हो जाएगा हमारा फॉर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग. 12 कैन डांस एंड एक्ट एंड 8 कैन सिंग एंड एक्ट. अब यहां से बाकी वैल्यूज निकल आएंगी. ठीक है, अगर हम सिंगिंग वाले पे फोकस करें तो टोटल 40 है. दिस इज 16, दिस इज 8, 16 प्लस 8 इज 24, 40 माइनस 24, दिस विल बी 16. सिमिलरली डांस वाले पे फोकस करें, टोटल है 60 और 16 प्लस 12 इज 28, 60 माइनस 28 विल बी 32. नाउ इन एक्ट वाला वेन डायग्राम, टोटल इज 24, 12 प्लस 8 इज 20, 24 माइनस 20, दिस विल बी इक्वल टू 4. और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी कैन परफॉर्म एग्जैक्टली वन टैलेंट, तो 16 प्लस 32 प्लस 4, दिस विल बी 52. Answer will be 52 can perform only one talent. Either they can sing or they can dance or they can act, but not any two, not any three. Okay. Next question. Choose the odd one from the following: flood, hurricane, earthquake, and bomb blast.
नाउ फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर, hurricane is a natural disaster, earthquake is a natural disaster, but bomb blast that is man made disaster. ठीक है, इसमें आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज द आंसर. दैट इज द ऑड वन. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी स्क्वायर्स डज द फॉलोइंग फिगर है. फिगर के बिना हमें आइडेंटिफाई करना है कितने स्क्वायर्स बनेंगे. जब भी कभी किसी भी फिगर में हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है, हमेशा एक ऑर्डर में काउंट करना है. ठीक है, एक ऑर्डर में काउंट करेंगे तो गलती हमसे नहीं होगा. ऑर्डर क्या होगा, स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट तक जाओ. तो सिंस हमें स्क्वायर्स काउंट करने हैं तो 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर हो सकता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4. टोटल डायमेंशन क्या है, टोटल डायमेंशन इज 5 क्रॉस 5. मैक्सिमम तो 5 क्रॉस 5 हो सकता है. लार्जेस्ट जो है हमारा वो 5 क्रॉस 5 है, तो 5 क्रॉस 5 का तो 1 ही है, ये तो देख ही रहा है. ठीक है, 1 क्रॉस 1 के सबसे पहले काउंट करते हैं. तो 1 क्रॉस 1 के कितने होंगे, 1. भाई दिस इज द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 4 हियर. तो 9 + 4 13. 13 हो गए. 2 क्रॉस 2. So for 2 क्रॉस 2, this is 1, 2, 3, 4. 4 तो यहाँ पे हो गए. देन 5 6 7 8, 8 हो गए. 4 + 4 = 8. कोई मिस तो नहीं हुआ. 2 क्रॉस 2 के सारे हमारे कवर अप हो गए. ठीक है, 8 हो गए. 3 क्रॉस 3. For 3 क्रॉस 3, this is 1, this is another, this is another and this is another. 4 हो गए. और फिर ये एक आ गया 5, ये भी तो है. तो 4 + 1 5. 4 क्रॉस 4 का तो एक भी नहीं बन रहा है, 0. टोटल क्या आ गया हमारा, 13 + 8 21 + 5 26 + 1 27. तो आंसर विल बी 27. ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, क्लियर है बात. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स व्हिच bears the same relationship to the third word as the first two. तो चेयर इज टू फर्नीचर, तो शू का कनेक्शन क्या होगा. चेयर इज अ फॉर्म ऑफ फर्नीचर, तो शू इज अ फॉर्म ऑफ फुटवेयर. ऑप्शन बी इज द आंसर. स्ट्रेट फॉरवर्ड. Next one, in the following diagram, square represents women, triangle represents corporate managers, and circle represents MBAs. Which number part represents women who are corporate managers and has done MBA as well? Women भी होना है, corporate manager भी होना है, MBA भी करना है, तीनों पार्ट करने हैं. तो women are squares, तो must be part of the square, must be part of the triangle as well, and must be part of the circle as well. तीनों का पार्ट क्या होगा, this is part of all three. 3 is the answer. Option B. Okay. Next one. Choose the correct alternative that will continue the same pattern and replace the question mark in the series. 7, 27, 107 and 427. So from 7 to 27 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. We are adding 20. Then 27 से 107 we are adding 80. Then from 107 to 427 we are adding 320. तो पहले 20 ऐड किया, फिर 80 ऐड किया, फिर 320 ऐड किया. तो क्लियरली जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो हर बार क्या 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है. 20, 80, 320. तो नेक्स्ट टाइम क्या ऐड करेंगे, 320 into 4, which will be basically 1280. So 1280 plus 427, this will be 1707. So answer will be 1707. Option B will be the answer. Okay. ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा. एक अप्रोच हो गया है सोचने का. सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं नंबर्स हैं हमारे 7, 27, 107, 427. तो इंक्रीज हमारा क्या है, स्टीप है. शुरू में इंक्रीज फ्लो हो रहा है, फिर इंक्रीज फास्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का कनेक्शन होगा. तो अगर मल्टीप्लीकेशन चेक करें तो 7 से 27 पे जाते हुए क्या होगा, 7 का 4 टाइम्स है, तो 7 into 4 28 -1. दिस इज 27. सिमिलरली 27 into 4 दैट इज 108 -1 107. तो 107 into 4 428 -1 427. तो नेक्स्ट नंबर होगा 427 into 4
-1. तो दैट विल बी 4 इंटू 4 1600, 1700 8 -1 1707. तो ये भी अप्रोच हो सकता है सोचने का, बात एक ही है, चाहे तुम पहले अप्रोच से सोचो या दूसरे से सोचो, अल्टीमेटली कनेक्शन सेम ही बनेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट assumption बेस्ड क्वेश्चन. स्टेटमेंट हमारा कह रहा है वी मस्ट इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट टू improve our examinations for admission to MBA. The chairman of the admission committee tells the committee कि we must introduce objective type tests to improve our examinations. Assumption 1, the admission at present is directly through the interview. क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है improve our examinations. There are some kind of examinations already in place, but they might not be having objective type test. तो अभी जो टेस्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, मे बी सब्जेक्टिव टाइप होगा. तो एजम्पशन नंबर 1 तो फ्लॉड है कि एडमिशन एट प्रेजेंट इज डायरेक्टली थ्रू द इंटरव्यू, बिकॉज एग्जामिनेशन आर देयर. व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन आर देयर दैट वी हैव नो आइडिया, बट ऑब्जेक्टिव टाइप तो नहीं है क्योंकि वो तो इंट्रोड्यूस करना है. तो फर्स्ट एजम्पशन इज इनकरेक्ट, दैट admission at present is not directly through the interview. That assumption is flawed. Second one, admission committee is desirous of improving the admission examinations. Now think about it. अगर chairman of the admission committee is telling the committee तो that we must introduce objective type test to improve our examinations. He is saying that we need to improve the examinations. तो इस बात का रेलेवेंस तभी है जबकि एडमिशन कमेटी इज डिजायरस ऑफ इंप्रूविंग द एग्जामिनेशन. इफ इट इज नॉट डिजायरस, अगर इसको चाहिए ही नहीं है कि डिजायर है ही नहीं इसका कि इंप्रूव ही नहीं करना हमको एडमिशन एग्जामिनेशन, जैसा है वैसा ही कवाड़ा रखना है, तब तो फिर कोई पॉइंट नहीं हुआ कहने का. तो इफ द स्टेटमेंट इज बीइंग मेड बाय द चेयरमैन दैट इंप्लाइज दैट एडमिशन कमेटी इज डिजायरस ऑफ इंप्रूविंग द एग्जामिनेशन, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा डेफिनेटली करेक्ट है. ठीक है, जब भी कभी एजम्पशन को आइडेंटिफाई करना होगा तो या तो निगेट करके आइडेंटिफाई करो कि निगेट करने से हमारा जो स्टेटमेंट है वो निगेट होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जो भी एजम्पशन होगा, एजम्पशन इज ऑलवेज द फाउंडेशन ऑफ द स्टेटमेंट. ओके, तो अगर फाउंडेशन ही हमने हटा दिया तो फिर स्टेटमेंट को फर्क पड़ना चाहिए. अगर नहीं फर्क पड़ रहा है यानी कि एजम्पशन इज फ्लॉड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 different positions of the same dice are shown below. Find the number of the face opposite the face showing 4. Opposite the face showing the face 4. तो क्या हमारा आंसर होगा? जब भी कभी डाइस पे बेस्ड ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वहां पे क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए? देखो, फेसेस हमारे किसी भी डाइस में या तो एडजेसेंट होंगे या ऑपोजिट होंगे. ठीक है, फेसेस या तो एडजेसेंट होंगे या ऑपोजिट होंगे. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई डाइस उठाया तो उसमें हमारे पास, डाइस को ऐसे ही समझ लो जैसे कि तुम्हारा रूम है, तो रूम में 4 फेसेस हो गए हमारे. ठीक है, और फिर एक टॉप पे एक बॉटम पे. अभी टॉप और बॉटम वाले ऑपोजिट है. ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले ऑपोजिट होंगे, फ्रंट और बैक वाले ऑपोजिट होंगे. जो ऑपोजिट है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते, अड़ोसी पड़ोसी नहीं हो सकते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है. अगर अड़ोसी पड़ोसी होंगे, एडजेसेंट होंगे, तो फिर वो ऑपोजिट नहीं होंगे, और अगर ऑपोजिट हैं तो फिर एडजेसेंट नहीं होंगे. जब भी कभी कोई डायग्राम देखोगे, डायग्राम में जो भी फेसेस हमें दिख रहे होंगे, ऑल दोस फेसेस विल बी एडजेसेंट, और क्योंकि वो एडजेसेंट हैं तो वो ऑपोजिट नहीं हो सकते. ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तब भी डायग्राम देखो. पहला डायग्राम कह रहा है 4 3 एंड 2, यानी कि 4 3 एंड 2 आपस में एडजेसेंट है, सो दे कैन नॉट बी अपोजिट. क्वेश्चन पूछ रहा है फेस अपोजिट द फेस शोइंग 4, तो 4 के एडजेसेंट 3 है, एडजेसेंट 2 है, तो 3 और 2 तो आंसर नहीं हो सकते, तो ऑप्शन सी तो रिजेक्ट हो गया. सिमिलरली 4 के एडजेसेंट 3 आ रहा है, सेकंड डायग्राम में 5 आ रहा है, तो 3 एंड 5 आर एडजेसेंट टू 4, तो 5 भी आंसर नहीं हो सकता है. क्या ये क्लियर है? बट यहां से भी हमारे पास 6 और 1 तो रह गया. ठीक है, 5 और 2 तो रिजेक्ट हो गए, बट फिर भी हमारे पास 6 और 1 तो रह गए. अब आगे कहीं देखते हैं. आगे हमारा थर्ड डायग्राम में आ रहा है 1 3 एंड 5, यानी कि 3 एंड 5 आर एडजेसेंट टू 1. ओके, और फिर हमारा आ रहा है 3 2 एंड 1. ओके फाइन, तो क्या आ रहा है 1 एंड 3. देखो इसमें फोकस करें, इन दिस डायग्राम एंड इन दिस डायग्राम. बाकी प्रॉपर तरीका भी देखेंगे, पर पहले कुछ ऑब्जर्वेशन भी समझ लें. तो 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 2. ओके, तो 1 एंड 3 तो एडजेसेंट है, और 1 3 के साथ में 5 आ रहा है, 1 एंड 3 के साथ में 2 आ रहा है. कभी भी अगर दो फेसेस हमारे एडजेसेंट दिखा रहा हो और साथ में एक थर्ड फेस चेंज हो रहा हो, जैसे कि इस केस में है और इस केस में है, 1 एंड 3 कॉमन है और 5 और 2 हमें थर्ड फेस दिख रहा है, तो ये जो थर्ड फेस है ये हमेशा अपोजिट होगा. दिस विल ऑलवेज बी अपोजिट. ठीक है, कभी भी अगर दो फेसेस कॉमन है, 1 एंड 3 इज कॉमन, और फिर हमें 2 एक एक्स्ट्रा दिख रहा है और 5 एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो दीज 2 मस्ट बी अपोजिट, यानी कि 2 और 5 तो अपोजिट होगा. ठीक है, 2 एंड 5 ऑपोजिट होंगे, ये बात तो पक्की होगी, ऑपोजिट फेसेस हो गए. बट हमें तो चाहिए था 4 के लिए, तो क्या यही सेम चीज़ 4 के लिए ऑब्जर्व की जा सकती है? 4 के लिए कर सकते हैं क्या यही सेम चीज़ यहाँ से? ठीक है, अगर 2 और 5 हमारे ऑपोजिट हो गए, और अब हमें क्या चाहिए, ऐसे ही क्या कर सकते हैं, 3 एंड 4 यहाँ पे दिख रहा है, 2 और 5 यहाँ से भी दिख रहा है, 3 4 एंड 2, 3 5 एंड 4. अच्छा, अगर हम इन दोनों को देखें, सेकंड एंड थर्ड को, सेकंड डायग्राम एंड थर्ड डायग्राम, तो विद सेकंड डायग्राम एंड थर्ड डायग्राम, क्योंकि 3 और 5 कॉमन है दोनों में, तो इफ 3 एंड 5 इज कॉमन इन बोथ, तो 4 एंड 1 मस्ट बी अपोजिट. 4 और 1 अपोजिट हो जाएगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी. आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर?
अब प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ये तो हो गया एक मेथड हमारा सॉल्व करने का, बट प्रॉपर मेथड क्या हो सकता है? देखो कभी भी ऐसा केस हमें जब भी मिले, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो मेथड अभी हमने देखा ही कि सेकंड और थर्ड पे हमने फोकस किया, अगर हम इनको नेम कर दें ए बी सी डी, ओके, अगर हम इनको नेम कर दें ए बी सी डी, जब भी कभी हमें दो फेस कॉमन दिख रहे हैं तो जो थर्ड फेस दिखने वाला है वो हमेशा आपस में ऑपोजिट होंगे ही होंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, तो वहां पे कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, 3 एंड 5 दिख गया, यानी कि 4 एंड 1 विल बी डेफिनेटली ऑपोजिट। तो यहां से बी एंड सी तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं, डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। 3 एंड 5 तो कॉमन थे, तो बचा हुआ जो हमारा 4 है और 1 है, दीज मस्ट बी ऑपोजिट फेसेस। बट हमेशा इतने डायग्राम दिए हो ये तो जरूरी नहीं है। तो सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि ऑब्जर्व, बेसिकली बी को ऑब्जर्व करो और डी को ऑब्जर्व करो, उन दो फेसेस को, उन दो पिक्चर्स को लो जहां पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, ओनली वन इज कॉमन। ठीक है, ओनली वन इज कॉमन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया बी को और डी को। अब क्या करो, जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करो इन द सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट फ्रॉम 3। ओके, हमने वही दो पिक्चर्स उठाए जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक हमारा फिगर कॉमन था, 3 वॉज कॉमन। तो 3 से हमने स्टार्ट किया क्लॉकवाइज, 3 5 एंड 4 इन डायग्राम बी, 3 5 एंड 4। एंड डायग्राम डी में आ रहा है हमारा क्लॉकवाइज 3 2 1। अब 3 तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आ गई 5 एंड 2, दीज मस्ट बी ऑपोजिट, 4 एंड 1 दीज मस्ट बी ऑपोजिट। तो अब जो बच गया हमारा वो 3 का ऑपोजिट होगा, यानी कि 6 विल बी अपोजिट टू 3। तो हमें पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया विद बी एंड डी ओनली। ठीक है, क्या करोगे, जो कॉमन है एक ही कॉमन होना चाहिए, वहीं से स्टार्ट करोगे, वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाओ। तो मेंशन कर दो 3 5 एंड 4, फर्स्ट पिक्चर में आ गया, सेकंड में आ गया हमारा 3 2 एंड 1, और क्लियरली यहाँ से हमें दिख गया 5 एंड 2 आर ऑपोजिट, 4 एंड 1 आर ऑपोजिट, एंड जो बच गया 6 दैट मस्ट बी ऑपोजिट। तो ठीक, हमें तो 4 के लिए चाहिए था, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। ओके, क्या ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है? अब डाइस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारा डायग्राम बेस्ड होगा, तो इतने ही मेथड से वो पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन होगा, जैसा भी क्वेश्चन होगा, वो तुम्हारा डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, और अगर डाइस में तुम्हें फिर भी अगर डायग्राम भी ड्रॉ करना है तो फिर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि 4 आर एडजेसेंट एंड 2 आर ऑपोजिट। ठीक है, नाउ इन दिस केस this face will be opposite to this one, this face will be opposite to this one, and this face here will be opposite to this one. ओके, अब कोई भी एक फिगर उठा लिया, जैसे तुमने 3 5 4 वाला फिगर उठा लिया मान लो। ठीक है, अब क्योंकि 3 5 एंड 4 एडजेसेंट, 3 5 एंड 4 एडजेसेंट, तो इनको तो एडजेसेंट ही लिखोगे। 3 मेंशन किया, 5 मेंशन किया, और 4 को समझ लो यहाँ मेंशन कर दिया, 3 5 एंड 4 ये एडजेसेंट हो गए। अब नेक्स्ट आ रहा है 3 2 एंड 1, ये भी तो एडजेसेंट है, 3 2 एंड 1 नहीं, और 5 का अपोजिट आ रहा है 2, तो 5 का अपोजिट अगर 2 आ रहा है तो दिस इज 5, तो 2 मस्ट बी हियर। 4 का अपोजिट 1 है तो 1 मस्ट बी हियर, एंड हेंस 6 मस्ट बी हियर। तो ये तुम्हारा प्रॉपर डायग्राम बन गया डाइस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Arjun said to Nitin, that boy playing hockey is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. How is the boy playing hockey related to Arjun? तो अर्जुन ने नितिन से क्या कहा, दैट बॉय प्लेइंग हॉकी इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। माई फादर्स वाइफ यानी मदर की डॉटर, और डॉटर का यंगर ब्रदर। ठीक है, यानी कि बेसिकली ब्रदर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी, और कहने के लिए कितना घुमाया। बेसिकली अर्जुन सेड दैट अर्जुन्स फादर्स वाइफ, बेसिकली अर्जुन मदर्स डॉटर, यानी कि सिस्टर ऑफ अर्जुन, एंड दो ब्रदर्स में से यंगर है, तो दैट अदर बॉय दैट इज प्लेइंग हॉकी दैट मस्ट बी ब्रदर ऑफ अर्जुन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। मिसिंग नंबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। पैटर्न देखते हैं, पहले पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। सो इन दिस केस नंबर्स क्या है, 1 2 आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19। ओके, सो अगर हम इतना भी देखें तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे, 2 + 6 18, दिस इज 18, हियर 1 + 17 दिस इज ऑल्सो 18। क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? 18 + 6 इज 24, 19 + 5 दैट इज ऑल्सो 24, तो 15 + 3 दिस इज 18। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस दिस नंबर शुड बी 18, तो दिस नंबर मस्ट बी 14। 14 होना चाहिए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ओके। और वही सेकंड पैटर्न तुम्हारा ऐसे भी बन रहा है कि फॉर एग्जांपल 1 1 2 एडजेसेंट नंबर्स है, 16 17 एडजेसेंट है, 5 and 6 एडजेसेंट है, 18 19 एडजेसेंट है। ठीक है, बट ये जो हमारे एजेस पे आ रहे हैं 1 2 16 17, यानी कि ये तो 14 होता या फिर 16 होता, यहाँ से तो दोनों केसेस बन सकते थे। हाँ, ये जरूर देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 से 17 +1 हो रहा है, देन -1 हो रहा है, अल्टरनेट +1 -1 है, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो यहाँ पे +1 होगा, यानी कि 14 +1 15 है, तो डेफिनेटली 14 होगा, 16 यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन में भी 16 गिवन नहीं है, तो कोई डाउट नहीं होता यहाँ पे। ओके, इतने से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट वन, a cube is painted red on 2 adjacent faces and on 1 opposite side's face, yellow on 2 opposite faces and green on the remaining face. It is then cut into 64 equal cubes. How many cubes have one red colored face only? यानी कि सिर्फ एक फेस कलर्ड हो और वो फेस भी कौन सा हो, रेड कलर्ड हो। ये हमें चाहिए कि हाउ मेनी सच क्यूब्स विल बी देयर। टोटल हमने कितने पेसेज में कट किया है, 64 इक्वल क्यूब्स में कट किया है। 64 इज बेसिकली 4 क्यूब, यानी कि 4 × 4 × 4 में कट किया है हमने अपने क्यूब को। एंड इन दिस क्यूब वी हैव 2 एडजेसेंट फेसेस कलर्ड रेड और एक अपोजिट फेस है जो कि कलर्ड रेड है, यानी कि 2 एडजेसेंट जो फेसेस हैं इनमें से एक का ऑपोजिट होगा, इन्हीं में से एक का ऑपोजिट होगा। इजंट इट सो? इफेक्टिवली दिस इज समवॉट लाइक दिस कि 2 adjacent faces are colored red. Let us say this is colored red and this is colored red. इनमें से एक का ऑपोजिट होगा, तो लेट अस से कि इसका ऑपोजिट की बात करें तो दिस मस्ट बी द ऑपोजिट, तो दीज 3 फेसेस आर कलर्ड रेड। ओके, एंड देन फॉर द रिमेनिंग फेसेस क्या क्वेश्चन कह रहा है कि येलो ऑन 2 ऑपोजिट फेसेस, तो येलो ऑन द 2 ऑपोजिट फेसेस, यानी कि दीज 2 फेसेस जो ऑपोजिट, येलो तो कलर ही नहीं दिख रहा भाई, हाँ ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि दिस इज लेट अस से येलो एंड दिस इज येलो, तो ये दो ऑपोजिट फेसेस में येलो हो गया और जो फेस हमारा बच गया वहां पे ग्रीन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन रेड कलर्ड फेस ओनली, जबकि हमने 64 पीसेस में कट किया है इसको, एंड 64 इज बेसिकली 4 × 4 × 4। अब वन रेड कलर्ड फेस कब होगा, जबकि हमारा जो क्यूब है जो हमने कट करके पीस बाहर निकाला है, दैट पीस इज फ्रॉम द इनसाइड्स, दैट पीस इज फ्रॉम द इनसाइड्स। 4 × 4 × 4 है, तो 4 कट्स होंगे ऑन एवरी डायरेक्शन। कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ओके, नाउ इफ दिस फेस इज रेड, लेट अस से, ठीक है, इफ दिस फेस इज रेड, अगर हम कोई भी कॉर्नर का पीस उठाएंगे तो कॉर्नर के पीस में तो सारे फेसेस हमारे कलर्ड होंगे, मतलब कि 3 फेसेस जो बाहर वाले एक्सपोज्ड हैं वो तो कलर्ड होंगे। हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक फेस कलर्ड हो और वो भी फेस क्या हो, रेड होना चाहिए, यानी कि दिस मस्ट बी फ्रॉम द इनसाइड्स, कि यहां से कोई भी हम क्यूब उठाने वाले हैं तो उसमें सिर्फ एक ही फेस कलर्ड मिलेगा। ठीक है, दिस मस्ट बी फ्रॉम द इनसाइड्स, और वो भी रेड होना चाहिए। रेड होना चाहिए यानी कि हमें इनसाइड चाहिए, बट किन किन फेसेस में मिलेगा, हमें वो इनसाइड वाले क्यूब भी उठाने हैं, कहां से, फ्रॉम दीज 3 फेसेस। तो इनसाइड वाले क्यूब्स कितने होंगे हमारे पास, बेसिकली 2 × 2 4 होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अगर हमारा n था, लेट अस से इफ दिस वाज n इंटू एन इंटू एन, n क्यूब होता है टोटल क्यूब्स हमारे, इनसाइड वाले क्यूब्स कितने होते हैं, n - 2 होल स्क्वायर, क्योंकि एक हम ये छोड़ देते और एक ये पार्ट छोड़ देते, तो n - 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पार्ट और ये पार्ट, तो n - 2 होल स्क्वायर विल बी नंबर ऑफ क्यूब्स ऑन द इनसाइड्स, एक फेस पे। ठीक है, तो क्योंकि n = 4 है यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 होंगे एक फेस पे, और टोटल फेसेस कितने हैं, 3 हैं, तो 4 मिलेंगे इस फेस पे, 4 मिलेंगे इस फेस पे, 4 मिलेंगे इस फेस पे, टोटल विल बी 4 + 4 + 4 विच इज इक्वल टू 12। our आंसर विल बी इक्वल टू 12, ऑप्शन सी। ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी बनाना होता, और क्वेश्चन ये कहता कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस कलर्ड रेड, ओनली नहीं कहता, यानी कि बाकी फेसेस भी कलर्ड होंगे चलेगा, बट ओनली वन फेस कलर्ड रेड। ठीक है,
क्यूब्स विद एग्जैक्टली वन फेस कलर्ड रेड, तब आंसर क्या होता? पॉज एंड थिंक अबाउट इट. एग्जैक्टली वन फेस कलर्ड रेड. तो बाकी कलर अलाउड है, बट हमारा जो रेड कलर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस पे होना चाहिए. ठीक है, तो येलो होगा किसी फेस पे वो चलेगा हमको, ग्रीन होगा वो चलेगा हमको. ठीक है, एक भी रेड ना हो वो नहीं चलेगा. एक फेस रेड हो चलेगा, बाकी फेसेस पे रेड कुछ भी हो, बाकी फेसेस पे कलर कोई हो ना हो वो सब कोई दिक्कत नहीं है, बट एक से ज्यादा फेसेस पे रेड नहीं होना चाहिए. तो व्हाट शुड बी द आंसर इन दिस केस? When exactly one face is colored red and other faces can be colored or not colored, that is not the problem. So in such a case, हमें पता है क्योंकि हमारे पास जो तीन फेसेस हैं उनमें से टू फेसेस आर ऑपोजिट, बट तीनों एडजेसेंट हो गए हमारे पास. तीनों एडजेसेंट तो नहीं है, दो फेसेस ऑपोजिट हैं. ठीक है, बट ये जो सेंटर वाला फेस है उसके लिए तो हमारा लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड दोनों ही फेसेस हमारे एडजेसेंट हो रहे हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैसे ध्यान देना पड़ेगा? ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा डायग्राम को बना के समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें बाकी कलर्स चलेंगे, बस दो रेड नहीं चलेंगे. ठीक है, दो रेड नहीं चलेंगे. तो अगर हम ऑब्जर्व करें सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जांपल हम डायग्राम इस तरह से बनाए कि ये दो फेसेस फॉर एग्जांपल एक्सपोज्ड हो. ठीक है, तो ठीक है ऐसे बना देते हैं. ओके, ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम. बाकी फेसेस को भूल जाओगे, हमें मतलब सिर्फ रेड से है. सो सिंस बोथ दीज फेसेस आर रेड और हमें सिर्फ एक फेस रेड चाहिए. ठीक है, और इसके राइट हैंड साइड पे जो आने वाला है वहां पे भी रेडी है. बस तुम्हारे लिए थोड़ा सा ओपन करके बना दिया ताकि समझ में आ जाए बातें. ओके, तो ये जो भी हमारे एज पे आएंगे क्यूब्स, ये सारे के सारे क्यूब्स, तो इनमें तो दो फेसेस रेड होंगे, तो एज वाले क्यूब्स हमको नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, है कि नहीं? बाकी क्यूब्स हमारे चल जाएंगे एज के अलावा, यानी कि दीज 8 क्यूब्स ऑन द इनसाइड्स ये तो चलेंगे, बिकॉज इन दीज 8 क्यूब्स हमारा कोई और कलर हो चलेगा, बट रेड कलर सिर्फ एक ही बार है, तो दीज 8 आर अलाउड. सिमिलरली अपार्ट फ्रॉम एजेस ये जो 12 क्यूब्स हैं ये भी चलेंगे. सिमिलरली अपार्ट फ्रॉम एजेस इधर के 12 क्यूब्स हैं ये भी हमारे चलेंगे, दीज आर ऑल्सो अलाउड. तो 12 हियर, 12 ऑन दैट साइड एंड 8 ऑन द मिडिल वन, तो 12 + 12 + 8 32 क्यूब्स होंगे एज सच विच आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. इज दैट इट सो? क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, 32 हमारा उस केस में आंसर होता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन. स्टेटमेंट कह रहा है फैशन इज अ फॉर्म ऑफ अगलीनेस सो इनटॉलरेबल दैट वी हैव टू अल्टर इट एवरी 6 months. A form of ugliness so intolerable that we have to alter it every 6 months. Okay, so fashion is a kind of form of ugliness and that is intolerable and hence it has to be altered, changed every 6 months. First conclusion कह रहा है fashion designers do not understand the public mind very well. क्या ये कंक्लूजन राइट हो सकता है फॉर द गिवन स्टेटमेंट? स्टेटमेंट हमारा कहीं भी फैशन डिजाइनर्स की तो बात ही नहीं कह रहा है. स्टेटमेंट कह रहा है फैशन इज अ फॉर्म ऑफ अगलीनेस इनटॉलरेबल एंड हेंस इट हैज टू बी अल्टर्ड एवरी 6 months. ठीक है, तो आफ्टर एवरी 6 months कौन इसको चेंज करता है? फैशन डिजाइनर्स चेंज कर रहे हैं, और फैशन डिजाइनर्स चेंज कर रहे हैं सो दे काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द माइंड. ठीक है, नहीं कह सकते कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द माइंड बिकॉज दे आर एवरी टाइम चेंजिंग इट. Isn't it so? So we cannot definitely conclude it क्योंकि उनके बारे में ऐसा ये डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहा है. कंक्लूड नहीं कर सकते कि फैशन डिजाइनर डू नॉट अंडरस्टैंड द पब्लिक माइंड. कंक्लूजन नंबर 2, द पब्लिक बाय एंड लार्ज इज हाईली ससेप्टेबल टू नॉवेल्टी. तो हो क्या रहा है? नॉवेल्टी ही तो हो रही है कि दैट इज अ फॉर्म ऑफ अगलीनेस इनटॉलरेबल एंड इट हैज टू बी अल्टर्ड एवरी 6 months. तो आफ्टर एवरी 6 months क्या हो रहा है? फैशन इज रिन्यूड, है कि नहीं? तो रिपैकेज्ड. तो पब्लिक बाय एंड लार्ज इज हाईली ससेप्टेबल टू नॉवेल्टी, दैट इज करेक्ट. दैट कैन बी कंक्लूडेड कि सेकंड पार्ट तो करेक्ट है एज पर द स्टेटमेंट. तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन बी शुड बी द आंसर. बाकी थोड़ा सा ट्रिकी था, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट था और यहाँ से कॉम्प्रिहेंड कर पाना इसको, बट यस ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ऑनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, 1 डज नॉट फॉलो, क्योंकि फैशन डिजाइनर्स के बारे में कहीं पे कोई बात नहीं हो रही. और पब्लिक बाय एंड लार्ज इज हाईली ससेप्टेबल टू नोवेल्टी, दैट इज वाई आफ्टर एवरी 6 months फैशन कीप्स चेंजिंग. ओके, next one. How many such pairs of digits are there in the number 951372448, each of which has as many digits between them in the number as when they are arranged in the ascending order? अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा.
95137248। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 नहीं, 5 है, 6 नहीं है, बाकी सारे के सारे डिजिट्स हमारे। तो 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9। अब हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर such that they have as many digits between them in the number as when they are arranged in the ascending order? ओके, तो यहाँ पे एक ऑर्डर में देख लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 के साथ पेयर्स देखते हैं। ठीक है, 1 के साथ पेयर्स देखते हैं। तो 1 एंड 2 नॉट श्योर, तो 1 एंड 2 के बीच में वहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, तो नॉट द पेयर। 1 एंड 3 अगेन 1 एंड 3 के बीच में कोई भी गैप नहीं है। सिमिलरली 1 4 के बीच में इन एक्चुअलिटी जब हम अरेंज कर रहे हैं तो हमारे पास 2 नंबर्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल नंबर में हमारे एक्चुअल नंबर में 3 आ रहे हैं, तो नॉट द प्लेस। 1 5 एडजेसेंट है एक्चुअल में। 1 7 सिर्फ एक ही आ रहा है। 1 8 अगेन 1 9, तो 1 के साथ तो कोई पेयर नहीं बन रहा। 2 3 2 4 एडजेसेंट आ रहे हैं, यहाँ पे 1 का गैप है। 2 5 में 2 आ रहे हैं जब हमने अरेंज किया, अदरवाइज इनिशियली 3 आ रहे थे। 2 7 एडजेसेंट आ रहे हैं एक्चुअल में। 2 8 2 9, 2 से के साथ भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। 3 4 3 5, यस 3 5 बन रहा है, बिकॉज 3 एंड 5 में एग्जैक्टली 1 इज देयर, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली 1 ही आ रहा है। 3 एंड 5 इज अ पेयर। 3 7 3 8 3 8 में बन रहा है। 3 8 में वी हैव 3, और यहाँ पे भी 3 ही आ रहा है, तो यस 3 8 इज अनदर पेयर। 3 9 नहीं बन रहा। ठीक है, ये सारे के सारे केसेस हो गए। ठीक है, 4 से काउंट करो। अच्छा, जब हम स्टार्ट करेंगे अब 3 से पीछे वाले नहीं देखेंगे, क्योंकि पीछे वाले ऑलरेडी हम कंक्लूड कर चुके हैं। 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 5 नहीं बन रहा। 4 7 4 7 4 7 बन रहा है, बिकॉज एग्जैक्टली 1 ही आ रहा है। 4 8 4 9 और कोई नहीं बन रहा। 4 से 5 7 5 8 5 9 नहीं बन रहा। 7 8 7 9 नहीं बन रहा। 8 9 नहीं बन रहा, यानी कि ओनली 3 पेयर्स आर देयर, 3 5 3 8 एंड 4 7। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, 3 हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन फ्रॉम सीमेट एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट। इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी डिस्कस वो सारी बातें समझ में आई होंगी और सेशन को अप्रिशिएट कर पाओगे। अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर लाइक बटन एज वेल। अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।